Previous class we discussed the electronic configuration of fifth period. Now in this class we will discuss the electronic configuration of sixth period, which also includes the lanthanide series. It means the lanthanide series are included in sixth period, and then actinide series are included in seventh period. The lanthanide series, it starts with the filling of 4f orbital. We know the f shell can accommodate a maximum of 14 electrons. Therefore, there are 14 members in this group, that is known as F group, or this is also known as 4f inner transition series. This sixth period start with the filling of 6s orbital, and it ends with the filling of 6p orbital, that is the noble gases. To the next, the seventh period, it start with the filling of 7s orbital. It includes the seventh period includes 7s. The next one, we have 6d and 5f together with 7p. These all orbital, we know S is there, P is there, D is there, F is there. S can accommodate 2 electrons, P can accommodate 6 electron, 6 to 8. D can accommodate 10 electron, 18, and F can accommodate 14 electron. When we sum up all these electrons, what we have 32 electrons are there. So for that, this period, 6th and 7th period, it includes 32 elements. But the 7th period is incomplete, and it mostly consists of heavier members. Heavier members means it includes various man-made radioactive elements. Let us discuss the 6th and 7th period of the periodic table. Let us discuss period 6th. It starts with the filling of what we have, 6s orbital. 6s orbital and of cesium, which has atomic number 55. तो जो पीरियड 6th है उसमें क्या होता है, 6s में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करते हैं, और जब 6s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमारे पास मेंबर कौन सा होता है, अल्कली मेटल का सीजियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 55 है. टू द नेक्स्ट, this period has filling of which one, 6s, then 4f, then 5d, then 6p. It means in this period, that is 6th period, there is consecutive filling of 6s, 4f, 5d, 6p. It means 2 element in S block, and the next one 14 element in F block, 10 element in D block, and 6 element in P block. This filling of these orbitals and contain this is filling of this orbital and contain together of कितने हुए
32 एलिमेंट्स। क्यों 32? S में 2, X में मैक्सिमम 2, F में 14, D में 10 और P में 6। 6, 4, 10 to 12, that is 2 and 1 and 1 and 1, 3, 32 elements। तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे? 32 एलिमेंट्स आर देयर। अब अगर हम बात कर लें तो 6x के बाद 2 मेंबर होंगे, हमारे अल्कली मेटल का होगा, एक अल्कलाइन मेटल का होगा। फिर क्या हो जाएगा? 4f की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन द नेक्स्ट वन वी हैव द फिलिंग ऑफ, in this period the filling of 4f start with cerium, which is represented as Ce. Atomic number of cerium is 58, and ends at lutetium, whose atomic number is is 71। तो इसी ऑर्बिटल में 2 अल्कली और अल्कलाइन मेटल के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगेंगे? 4f ऑर्बिटल में जाएंगे। और वह मेंबर जिसमें 4f1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन सा है? सीरियम है। ये सीरियम जो है हमारा लैंथेनाइट सीरीज का मेंबर है और पहला मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 58 है। और कब तक चलेगा? जब तक 14th एलिमेंट ना हो जाए। जब तक क्यों? क्योंकि f में 14 एलिमेंट अकोमोडेट करते हैं। तो सीरियम से स्टार्ट हुआ, एटॉमिक नंबर 58 से चलेंगे कितना? 14 एलिमेंट तक और चलेंगे। तो व्हाट वी हैव ल्यूटेनियम whose atomic number is 71 and has configuration 4f14। तो कितने हो गए मेंबर? यहां 4f1 और यहां कितना हो गया? 4f14। कितने मेंबर हो गए हमारे? 14 मेंबर हो गए। दिस इज नोन एज लैंथेनाइट सीरीज। इट मीन्स व्हाट वी हैव the 4f inner transition, inner transition series is known as, this one is 4f, this is known as what? Lanthanide series. Because it starts from lanthanum, क्योंकि ये लैंथेनियम से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द 6 पीरियड। 6 पीरियड में हमने क्या पढ़ा? 6 पीरियड में पढ़ा कि 6 पीरियड का पहला मेंबर जो है वो क्या है? सीरियम है। सीरियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s1 और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 55 होगा। ये हमारा जो 6 पीरियड है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? तो 6s टुगेदर विथ 4f टुगेदर विथ 5d टुगेदर विथ 6p। अब इन सभी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि इस पीरियड में 32 एलिमेंट हैं। इसमें पहला अगर s में भर जाए इलेक्ट्रॉन तो अल्कली और अल्कलाइन मेटल होगा। f में इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वो 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। f में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहला मेंबर जो है वो सीरियम है, जो हमारे लैंथेनाइट के बाद आता है सीरियम, और इसीलिए इन 14 मेंबर्स को हम कहते हैं लैंथेनाइट। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4f1 कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट, और इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। जो हमारा ये क्या है? 6 जो पीरियड है उसमें 4f कॉन्फ़िगरेशन
एटॉमिक नंबर 71 पे मिलता है, जो मेंबर कौन सा है, ल्यूटीनियम है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं या लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। ये जो पीरियड है कौन सा, 6f, द 6s period ends with filling of which 6p orbital which has atomic number what, 86, atomic number 86, known as radon, represented as Rn। तो ये जो हमारा 6th पीरियड है या 6th पीरियड है, वो एंड कहाँ करता है, 6p ऑर्बिटल के भर जाने के बाद। कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा, 6p6, और मेंबर कौन सा है, वो रेडॉन है, नोबल गैसेस का मेंबर है, और रेडॉन जो है लास्ट मेंबर है। उसके बाद 118 एटॉमिक नंबर आएगा, जो आर्टिफिशियली हम जानते हैं। तो 86 है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडॉन कहते हैं। टू द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द 7th पीरियड। वी विल नाउ डिस्कस द 7th पीरियड। 7th period. The first one, it is start with the filling of 7s orbital. It starts with the filling of 7s orbital in case of francium, represented as Fr, who has atomic number 87। तो जो हमारा 7th पीरियड है वो स्टार्ट होता है कितने कॉन्फ़िगरेशन से, वो स्टार्ट होता है व्हाट, 7s1 कॉन्फ़िगरेशन से। और मेंबर कौन सा है हमारा, फ्रांसियम है, जो हमारा अल्कली मेटल का है, पहले ग्रुप का मेंबर है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, पहला मेंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है, हम देखेंगे कि n=7 में कौन कौन सी ऑर्बिटल है। तो इसमें 7s है, इसमें 5f है, इसमें 6d है, और इसमें 7p है। तो इन सभी ऑर्बिटल्स में अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएं तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 32 मेंबर्स आर देयर। इट मींस दिस पीरियड includes consecutive filling of 7s, 5f, the next one 6d and 7p. These are the orbitals which will be filled in 7th period. It means the 7s can accommodate 2 electron, f can 14, 10, and then what we have, p6. It means this period contains what, 32 elements. To the next, this period we know when we move to atomic number greater than 87, then
the nucleus become more and more heavy. When the nucleus become more and more heavy, then most of the elements are radioactive, and in this period most of the elements are discovered, or we can say most of the elements are man-made. The next one, this period include mostly man-made radioactive element. The next, in this period, the filling of f orbital start, 5f orbital start from what? Actinium. Therefore, this is known as actinide series. And the filling of 5f orbital starts from actinium, which has atomic number 89, and it ends at the filling of 5f orbital. Let us know that the filling of what? 5f orbital starts from actinium. Whose atomic number is 89. To the next, it ends at, this filling of 5f orbital starts from actinium, whose atomic number is 89, and ends at lawrencium, whose atomic number is 103. To the next, this filling of 5f orbital forms, it starts from actinides, therefore it is termed as 5f inner transition series or actinide series. This is known as 5f, because there is consecutive filling of 5f orbital. This is known as 5f inner transition series, or this is known as 5f inner transition series or actinide series. To the next, the last member of this period is what? Who has atomic number 118. The last member of this period is having atomic number 118, which is not having permanent names. It means it has only temporary name, and it comes in the noble gases, which has configuration what? 7p6, and temporary known as what? Unoctium. Unoctium.
or in short it is known as unoctet. This is all about the electronic configuration of various member in the periodic table containing first to 7 period and from S block, P block, D block together with F block. तो ये हमने जाना। क्या हमने देखा कि जो हमारा 7th पीरियड है इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पहला मेंबर जो है वो कौन सा है, फ्रांसियम है, और किस ग्रुप का, पहले ग्रुप का है। 7th पीरियड पहला ग्रुप मेंबर फ्रांसियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होंगे और 7s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका एटॉमिक नंबर 87 है। हम जानते हैं कि जो हैवियर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवियस न्यूक्लियस के कारण रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हमारा फ्रांसियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास कितना है, 7s है, तो 7s में 2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 7s में हमारा पहला अल्कली मेटल से मेंबर होगा और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल से मेंबर होगा। हम जानते हैं कि 7th पीरियड में कौन कौन सी ऑर्बिटल फिल होंगी, 7s, 5f, 6d एंड 7p। 7s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। 5f में कितने जाएंगे, 14। 6d में कितने जाएंगे, 10 और 7p में कितने जाएंगे, 6। जब हम इसको सम करेंगे तो 14 एंड 6 20, 22 एंड 10 32 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस पीरियड में। इसका मतलब इस पीरियड में कितने मेंबर होंगे, 32 एलिमेंट्स होंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीरियड है वो कहां से कहां तक रहता है, दैट इज फ्रॉम 87 टू 118। हमने पहले भी बताया है कि 113 टू 118 जो एलिमेंट हैं अभी उनको टेम्पररी नेम ही दिए गए हैं, परमानेंट नेम जो है उनको असाइन नहीं है। और आई हैव टोल्ड यू हाउ टू गिव टेम्पररी नेम्स टू न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे वो मोस्टली मैन मेड हैं और वो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, बिकॉज उनका न्यूक्लियस क्या है, हैवी है, तो वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन में जाते रहेंगे। अब हम बात करें इसमें, इट कंटेन 6d टू 6d भी होगा इसमें और इसमें 5f भी होगा। तो पहले 6d और 5f, तो 6d है और 5f इसमें है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5f की फिलिंग पहले होगी और 5f में कितने मेंबर हैं, 5f में 14 मेंबर्स होंगे। पहला मेंबर जो है वो कौन सा है, एक्टिनियम है, इसीलिए इस f सीरीज को, जो 5f सीरीज होती है उसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। तो देखेंगे ये 5f सीरीज जो है वो एक्टिनाइट सीरीज है, जो 4f इससे